Good morning and Assalamu alaikum BSN. Girls, are you there? Are you able to listen me? आवाज आ रही है मेरी? Please confirm. Shamsa, Saman, Aisha, Sheba.
ना सबको आवाज आ रही है मेरी? निम्रा, ओके, थैंक यू। ओके अदील, थैंक यू। ठीक ठीक ठीक, चलो। जस्ट वांट टू कंफर्म कि जो है हमारा कनेक्शन जो है वो वैलिड है। ठीक है जी। तो कल का कुछ देखा तुम लोगों ने, रिव्यू किया? हैव यू रिव्यूड योर प्रीवियस लेक्चर? बिकॉज आई एडवाइस यू to review the lecture daily. If we revise the lecture on the daily basis, then it is better for you guys, so that if you are unable to understand any topic, any terminology, so you can ask me. What we are going to study today is enzymes, and it is totally from your instant biochemistry book. So as soon as the presentation gets online, we will move toward it. Yesterday I was also telling you about the enzymes. You all are familiar with the enzymes. You have studied it earlier also, that enzymes are organic compounds and they are the biochemical catalyst. Biochemical catalyst. So there is a difference between a catalyst and the biochemical catalyst, or the biological catalyst. Biological catalyst is the one which is okay. The presentation has also been shared, so I advised you yesterday to zoom it. So, and second thing is that no, I have taken the pictures from your book, so you are able to open the book in front of you if you are unable to read anything. So you can simply zoom it, or you can open your own books. So enzymes are the proteins which are produced by the living cells and which are capable of catalyzing a chemical reaction in a living organism to yield a specific product without getting used up. So this is basically property of the enzyme. First of all, they act in the biology system. Because when we use the term enzyme, so it means that they are speeding up the reaction in the biological system. Otherwise we will say it's simple catalyst. हम एंजाइम्स कहने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में तो सिंपल कैटलिस्ट होता है, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे निकल है, प्लैटिनियम है, ठीक है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो लिविंग सिस्टम में हमारा जो कैटलिस्ट है उसका नाम है चेंज, उसको हम कह रहे हैं एंजाइम सिंपली, ठीक है। नाउ अब जो एंजाइम है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि खुद से इसने यूज नहीं होना, ठीक है। इट हेल्प्स टू स्पीड अप द रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, ठीक है, स्टार्ट नहीं करेगा एंजाइम, सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। जो पहले से इनिशिएट हुआ होगा रिएक्शन, एंजाइम्स का काम सिर्फ ये है कि इसने उनको एक्सेलरेट करना है, स्पीड अप करना है, ठीक है। और अनदर प्रॉपर्टी इज दैट इट विल नॉट इटसेल्फ यूज्ड in the in the reaction. After, as the reaction has been finished or over, enzyme is able to be utilized in another reaction. तो अपनी नेटिव स्टेट में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में, जिस स्टेट में हमने ये रिएक्शन में डाला था एंजाइम, उसी स्टेट में हमें ये वापस मिल जाता है, ठीक है, ताकि हम इसको किसी और फिर रिएक्शन में यूज कर लें। इट कैन नेवर कंज्यूम इन द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स देखो यूज होते हैं, प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड दे फॉर्म द डिफरेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स के साथ एक और चीज हम डालेंगे एंजाइम्स, जो कि रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा। और कभी भी आपके रिएक्टेंट्स वैसे ही बनेंगे, ठीक है, एंजाइम्स के बगैर रिएक्शन आपका प्रोसीड नहीं करेगा। तो एंजाइम्स रिएक्शन को प्रोसीड भी करवाते हैं, स्पीड अप भी करवाते हैं, एक्सेलरेट भी करवाते हैं, और खुद से यूज भी नहीं होते। And this is one of the important topic I must say. Now, what is the catalyst? These are the agents which
in minute amounts increase the velocity of the reaction without appearing in the final product of the reaction. As I told you, the enzymes won't appear in the final product. They have nothing to do with the product of the reaction, because they are itself available at the end of the reaction in the native state, and they are required in a very small amounts. A very minute amount of the enzyme is added to the reaction, and that is enough to proceed the reaction. We are familiar with the certain terminologies related to enzyme, for example substrate. Now, the compound on which the enzyme act is called as substrate. जिस substance पे enzyme act करेगा उसको हम कह रहे हैं substrate. जाहिर है enzyme है, उसने किसी ना किसी चीज पे act तो करना है. For example, lipase is the enzyme. किस पे act करेगा? Lipids पे. तो lipid को हम क्या कह सकते हैं? We can say lipid is the substrate of the enzyme lipase. In the same way, if the enzyme acts on sucrase, we can say if the enzyme acts on the sucrose, which is a table sugar, we can say that sucrose is the substrate for the enzyme sucrase. So the substance or the compound on which the enzyme acts is called as the substrate. Now, coming towards the nomenclature of the enzyme, how the enzyme has been named. Originally, the enzyme has been named on the basis of the procedure from which they are isolated, on the process of their discovery, or on the procedure of their isolation, or on the name of their discoverer. Initially, enzymes have been named according to these few parameters or basics, we can say, कि जिन लोगों ने इनको डिस्कवर किया हुआ था, जिस प्रोसेस से एंजाइम्स डिस्कवर हुए थे, तो उस बेस पे उनको नाम दे दिया गया. जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, या जो वो काम कर रहे हैं. Now, the latest basically nomenclature of the enzyme is that any of the enzyme basically ends with the suffix ase. So we can recognize easily that this word is the name of the enzyme by seeing the ase term at the end of the word. For example, amylase, catalase, protease, peptidase. So ase is the basically term which used to tell that this is the name of the enzyme. So whenever enzymes have been named, there is a suffix ase, ase at the end of the enzyme. I must tell you that the classification of enzyme is quite important, that there are 6 major classes on which the enzymes have been based, and there are further subclasses. So the major 6 classes we all must know, the major 6 classes of the enzyme. And as far as the subclasses are concerned, so if you don't able to remember the reactions which are given in your book, at least you should memorize the names of the subclasses of the enzyme, and I am telling you this is easy, not as tough. So the first class of the enzyme is oxidoreductase. Oxidoreductase cover the two things, as the name is indicating, oxidoreductase. Oxido means oxidation and reductase means reduction. So this class covers the enzyme which are involved in the oxidation or reduction reactions. Oxidoreductase, इसमें सारे वो एंजाइम्स आएंगे जो या तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं किसी की, या रिडक्शन करवा रहे हैं. ठीक है. फर्दर इसको हमने यहाँ पे 5 सब ग्रुप्स लिखा है, बट देयर आर 4 क्लासेस फर्दर जिसको हमने इसकी सब क्लासेस जो हैं, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज है, इसके अलावा ऑक्सीडेज है, ऑक्सीजनेज है, और हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज है. सो देयर आर नॉट 5 सब ग्रुप्स, बट देयर आर 4 sub classes of the oxidoreductase. The first one is the dehydrogenase. Dehydrogenase का मतलब है जी कि हाइड्रोजन की रिमूवल. ठीक है. Dehydrogenase means removal of hydrogen from the substrate. कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसमें से हमने हाइड्रोजन को अगर एंजाइम रिमूव करा देगा, तो ऐसे एंजाइम को हम कह रहे हैं dehydrogenase. If the reaction takes place in the presence of oxygen, then it will be called as aerobic dehydrogenase. And if the reaction takes place in the absence of oxygen, then it will be called as anaerobic dehydrogenase. The examples are given below. For example, if glucose is the substrate and oxygen and hydrogen has been removed from it,
then the product will be gluconolactone. You can give that example, or when in the future we will study the metabolism, then there are so many reactions which can undergo dehydrogenase, so you can give that example also. बट एक तो इसमें लाजमी है कि एक हम इसमें से याद कर लें कम अज कम, जैसे लैक्टेट और पायरुवेट वाली, क्योंकि हमने ग्लाइकोलाइसिस वगैरह भी करना है, तो दैट विल बी easier for us to memorize that lactate is changed into pyruvate and the enzyme is lactate dehydrogenase. Glucose is changing into gluconolactone. ठीक है, तो अगर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, जैसे कि फर्स्ट जो रिएक्शन है ग्लूकोज और ग्लूकोनोलैक्टोन वाला, उसमें ऑक्सीजन हैज बीन एंटर्ड इनटू द रिएक्शन. ठीक है, तो इफ इट इज टेकिंग प्लेस इन द presence of oxygen, then it will be aerobic dehydrogenase, and if the reaction takes place in the absence of oxygen, then it will be anaerobic dehydrogenase. And the examples we have to memorize. The second class, subclass of oxidoreductase. Oxidoreductase की दूसरी जो सब क्लास है, oxidoreductase में आप लोग जो है ना इन सब क्लासेस में से किसी एक की भी एग्जांपल उठा के दे सकते हो. If there is a question in the exam that explain the classification of enzymes, then you have to write the major 6 classes depending upon the marks of the question. If the question is of 3 marks, then how can you explain the sub classes? You can never explain the sub classes because the marks are very low, 3 or 4. So you have to just write or explain the major classes, and you can but you can give the names of the subclasses. You cannot explain, but you can give the name of the subclasses. And sometimes there may a question arise that only there will be question that write the subclasses of the oxidoreductase. So in that case, what can we do? Then definitely we have to learn it, we have to memorize it. So second subclass is oxidases. Oxidases, they use only the oxygen as a hydrogen acceptor. For example, ascorbic acid is changing into dehydroacetone. So these are the basically this is the basically type of the class which use oxygen as a hydrogen acceptor. मतलब इसका ये है कि सबस्ट्रेट जो है, जैसे ascorbic acid सबस्ट्रेट है, तो ascorbic acid के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन में जो भी ज़ाहिर ऑक्सीडेसेस हैं, ऑक्सीजन तो रिएक्शन में सप्लाई हो रही है, जा रही है. ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, पूरा सबस्ट्रेट नहीं, सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड का जो सबस्ट्रेट यानी कि जो सबस्ट्रेट है उसमें सिर्फ जो हाइड्रोजन है वो सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, पूरा सबस्ट्रेट ऑक्सीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा. यानी कि ऑक्सीजन पूरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं करेगी, सिर्फ सबस्ट्रेट में मौजूद जो हाइड्रोजन है उसके साथ बाइंड कर रही है. ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहते हैं ऑक्सीडेजेस. अब अगर ऑक्सीजन जो है वो पूरे सबस्ट्रेट के साथ पूरे सबस्ट्रेट में जा रही है तो फिर नाम चेंज हो जाएगा, फिर हम उसको कहेंगे ऑक्सीजिनेजेस. दे इनकॉर्पोरेट द ऑक्सीजन इनटू द सबस्ट्रेट. देखा कि ये ऑक्सीजन जो है जी ये पूरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके, जैसे फिनाइलएलानाइन है उसमें ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है और चेंज हो गई है किसमें, टायरोसिन में. तो ऑक्सीडेजेस और ऑक्सीजिनेजेस में डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडेजेस जो हैं वो ऑक्सीजन को सिर्फ यूज करते हैं एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ताकि हाइड्रोजन उसके साथ बाइंड कर जाए. ठीक है, और वो हाइड्रोजन उसके साथ बाइंड करके इन द फॉर्म ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर वो एलिमिनेट भी हो सकता है. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो जो एस्कॉर्बिक एसिड वाला रिएक्शन है उसमें रिएक्शन में ऑक्सीजन एंटर हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड में जो हाइड्रोजन था उसके साथ बाइंड करके इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज हो रही है रिएक्शन से. ठीक है, लेकिन इसमें ऑक्सीजनेसिस में ऐसा नहीं है. ऑक्सीजनेसिस में पूरा सबस्ट्रेट ही जब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर रिमूवल वगैरह ज़ाहिर है नहीं होगी. ठीक है, तो फिनाइलएलानाइन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया और ये अपनी प्रोडक्ट में चेंज हो गया. तो जी ये डिफरेंस है ऑक्सीडेसिस और ऑक्सीजनेसिस में. ठीक है, अब हम जी नेक्स्ट जो हमारी क्लास है विच इज हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज. हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेजेस जो क्लासिफिकेशन है दैट इज आल्सो गिवन इन द टेबल, वेल एक्सप्लेन्ड इन द टेबल. फ्लो चार्ट की फॉर्म में है, वहां से भी तुम लोग कर सकते हो, बट हमने डिटेल्स तो करनी है. हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेजेस एज द नेम इज इंडिकेटेड, इसका तो सबसेट होगा सिंपली हाइड्रोजन पर
ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे एंजाइम सिर्फ लिमिटेड हैं, स्पेसिफिक हैं कि ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड पे ही एक्ट करेंगे। अब ये भी दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरोक्सिडेजेस। ठीक है, animals, both of them break down the hydrogen peroxide in the different ways। ठीक है, तो ये दो तरह के हैं, एक प्लांट्स में पाए जाते हैं और एक एनिमल्स में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो जाहिर है वी विल गेट द वाटर एंड द ऑक्सीजन। तो ये है जी चार सब क्लासेस ऑक्सीडो रिडक्टेज जो हमारी पहली क्लास है उस एंजाइम की। देयर आर द फोर सब क्लासेस। अब मैं एक बात बताती चलूं कि क्लासिफिकेशन एंजाइम्स की थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि फोकस हमारा होना चाहिए पहले, जो पहले मेन 6 क्लासेस हैं। ठीक है, उन पे फोकस होना है। और इन जैसे 6 क्लासेस हैं तो इनकी सब क्लासेस के कम से कम बस नाम याद रख लो। जरूरी नहीं है कि सबके रिएक्शन भी याद रख लो। हाँ, अगर खुद से रखना चाहते हो तो फिर मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि सब क्लासेस के नाम और मेजर जो है 6 क्लासेस उनकी एक एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का मतलब है रिएक्शन एक एक। अब देखो ऑक्सीडो रिडक्टेसिस में तुम लोग ये लास्ट वाली हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल भी दे सकते हो। ग्लूकोज से ग्लूकोनोलैक्टोन बन रहा है, वो भी दे रहे हो, दे सकते हो, क्योंकि इनमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, सारी इस पे फिट हो जाएंगी, सारी इसी की सब क्लासेस है ना, दैट्स व्हाई। अब जी सेकंड हमारी जो क्लास है विच इज ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस दे कैटलाइज द exchange of the groups। Transferases catalyze the exchange of the groups except hydrogen। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी ग्रुप्स हैं ना वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में ट्रांसफर करेगा। कौन सा एंजाइम? ट्रांसफरेजेस। ठीक है ना, दो कंपाउंड्स के दरमियान जाहिर है दो चीजें होंगी तो ट्रांसफर होगी ना, दो कंपाउंड होंगे, एक कंपाउंड होगा तो ट्रांसफर कैसे हो सकती है? तो दो कंपाउंड्स के दरमियान ट्रांसफरेजेस किसी भी ग्रुप की ट्रांसफर करा देते हैं, जैसे मिथाइल ग्रुप की करा सकते हैं, अमाइन ग्रुप की करा सकते हैं, ठीक है, पेप्टाइड ग्रुप की करा सकते हैं। तो जो एंजाइम ट्रांसफर करवा रहा है ना ग्रुप्स की, उसको हम कह रहे हैं ट्रांसफरेजेस। ठीक है, अब इसकी भी फर्दर जी सब क्लासेस हैं। जैसे पहली इसकी जो सब क्लास है दैट इज ट्रांस अमाइनेजेस। Transaminases catalyze the exchange of the amino group between the amino acid and the keto acid। ठीक है, अमाइनो एसिड और कीटो एसिड के दरमियान जी अमाइन ग्रुप की ट्रांसफर हो रही है। पहले भी मैंने बताया था तुम लोगों को कि जब अमाइनो एसिड में से अमाइन ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, if we remove the amine group from the amino acid then it will change into keto acid। और अगर जो कीटो एसिड है उसमें हम ऐड करवा दें, उसमें ट्रांसफर करवा दें अमाइनो ग्रुप की, तो वो क्या बन जाएगा? अगर हम कीटो एसिड में अमाइनो ग्रुप ऐड करवा दें तो वो बन जाएगा दोबारा अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये काम कौन सा एंजाइम करवा रहा है? ये काम करवा रहा है ट्रांस अमाइनेज। अब रिएक्शन गिवन है कि ग्लूटामेट और जो पायरुवेट है, ठीक है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है और पायरुवेट जो है वो कीटो एसिड है। अब ग्लूटामेट अपना अमाइन ग्रुप दे रहा है पायरुवेट को। ठीक है, ग्लूटामेट इज गिविंग द, दोनों सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, ग्लूटामेट प्लस पायरुवेट भी लिख सकते हो। इन्होंने ग्लूटामेट को ऊपर लिखा हुआ है मैं बता दूं और पायरुवेट को नीचे लिखा हुआ है, उस तरह से रिएक्शन की समझ नहीं आती, लेकिन ये है ग्लूटामेट प्लस पायरुवेट, यानी कि एक ही सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट्स हैं। ठीक है, सीधी लाइन में भी लिख सकते हो ग्लूटामेट प्लस पायरुवेट और एक ही एरो लगा के इट इज चेंजिंग इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड द अमाइनो एसिड एलानिन। ठीक है, तो ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है, ये अपना अमाइन ग्रुप दे रहा है किसको? पायरुवेट को, जो कि कीटो एसिड है। अब क्या होगा? ग्लूटामेट कीटो एसिड बन जाएगा और पायरुवेट जिसने एक्सेप्ट कर दिया है जो अमाइन ग्रुप, वो क्या बन जाएगा? वो अमाइनो एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसफरेजेस। ALT which is the alanine transaminase। ठीक है, इसको हम SGPT भी कहते हैं, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज। और AST which is called as एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, और इसको हम SGOT भी कहते हैं, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसिटेट ट्रांसअमाइनेज। ये दोनों जो एंजाइम्स है ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी एब्रीवेशंस, इनके नाम तुम लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, ALT और AST, बोथ ऑफ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। ठीक है, ये हमारे लिवर के एंजाइम्स हैं, एंड पे भी काम आएंगे कि जो एंजाइम्स डायग्नोसिस में यूज होते हैं। तो जी ALT एंड AST दोनों में से एक एग्जांपल याद रख लो तुम लोग। ठीक है ना, ALT की याद रखनी है, AST की याद रखनी है, जो तुम लोगों को इजी लगती है।
बट उसमें क्या है, दोनों में यही है कि जो अमाइनो एसिड है वो कीटो एसिड में चेंज हो रहा है और जो कीटो एसिड है वो अमाइनो एसिड में चेंज हो रहा है. सो दैट इज द सेकेंड क्लास. ठीक है, ट्रांसफरेजेस, और उसकी पहली सब क्लास थी ट्रांस अमाइनेजेस. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली नेक्स्ट सब क्लास ऑफ द ट्रांसफरेजेस. ट्रांसफरेजेस की जी अगली जो सब क्लास है, बेसिकली जो अगली सब क्लास है ट्रांसफरेजेस की, दैट इज अब ये सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है जी ट्रांस अमाइनेजेस का, दैट दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमाइनो एसिड्स. डेफिनेटली कीटो एसिड को जब अमाइन ग्रुप मिल गया है तो वो अमाइनो एसिड में चेंज हो रहा है. तो ट्रांस अमाइनेजेस का बड़ा रोल है कि ये दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द amino acids from the keto acid. Now the next is the basically phosphotransphorases. Phosphotransphorases, as the name is indicating, के जाहिर है ये ऐसे enzymes हैं which are involved in the transfer of the phosphate group. These are the enzymes which are involved in the transfer of the phosphate group. That's why the name is फॉस्फोट्रांसफरेजेस. ठीक है, और जो भी ग्रुप है जो फॉस्फेट की ट्रांसफर करता है उसको हम काइनेजेस भी कहते हैं. काइनेजेस. ठीक है, ग्लूकोकाइनेज होगा, हेक्सोकाइनेज होगा, तो इसका मतलब है कि इसमें एटीपी भी इन्वॉल्व है और फॉस्फेट की ट्रांसफर भी हो रही है, बिकॉज एटीपी आल्सो कंटेन्स द फॉस्फेट. ठीक है, तो एटीपी से जब एडीपी बनता है तो इसका मतलब है फॉस्फेट की ट्रांसफर हो रही है, या एडीपी से जब एटीपी बनता है. तो phosphotransferases involve the transfer of the phosphate group and they are also called as kinases. Transmethylases, मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, नाम में ही है ट्रांसमिथाइलेजेस, तो दे आर इन्वॉल्व इन द, ये सब नाम याद रख लो तो एक्सप्लेनेशन तो खुद ही लिख सकते हो तुम लोग. ठीक है ना, अगर फॉस्फोट्रांसफरेजेस याद है तो लिख सकते हो, एक लाइन खुद भी लिख सकते हो कि दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. ट्रांसमिथाइलेजेस, दे कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ मिथाइल ग्रुप. ठीक है, इसमें एग्जांपल इन्होंने जो दी हुई हैं वो पढ़ लो, लेकिन ये है कि बहुत बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा सारी एग्जांपल्स को भी याद करना ना, तो कम से कम नाम और फंक्शन तो याद हो. कोई एंजाइम का नाम याद रख सकते हो. ठीक है, जैसे फॉस्फोट्रांसफरेजेस के नीचे फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज लिख दो. अगर पूरा रिएक्शन नहीं लिखना चाहते तो यू कैन सिंपली राइट एग्जांपल, एक नाम उसका याद होना चाहिए कि ये एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप की ट्रांसफर करता है, हेक्सोकाइनेज. ठीक है, एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन है जी, ये ट्रांसफरेज, एसिटिनोसाइल मिथ्योनिन ट्रांसफरेज, ये मिथाइल ग्रुप की ट्रांसफर कर रहा है. ठीक है, अब इसी तरह से ट्रांसपेप्टाइडेज, दे कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ द पेप्टाइड और द अमाइनो एसिड्स. अगर पेप्टाइड की ट्रांसफर हो रही है या अमाइनो एसिड्स की हो रही है तो फिर क्या होगा, ट्रांसपेप्टाइडेज. इसी तरह से जी ट्रांसएसाइलेज, एसाइल ग्रुप की अगर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, कोएंजाइम ए एस एच को हम एसाइल ग्रुप भी कहते हैं. ठीक है, लिखा हुआ है एसाइल ग्रुप एस कोएंजाइम ए, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एसाइल ग्रुप. और ये क्रेब साइकिल में अगर तुम लोग को याद हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो हमें इंशाल्लाह करना भी है. तो एसाइल ग्रुप की जो एंजाइम ट्रांसफर करवाते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांस एसाइलेज. ठीक है, जैसे पामेटिक एसिड पामेटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो रहा है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म का ही रिएक्शन है. ये तुम लोग को अगर अभी नहीं भी याद करोगे तो आगे जाके हो जाएगा. ठीक है जी, तो हमने की है जी कितनी सब क्लासेस ट्रांसफरेजेस की, जो है ट्रांस अमाइनेजेस, फॉस्फोट्रांसफरेजेस, ट्रांस मिथाइलेजेस, ट्रांस पेप्टाइडेजेस, और लास्ट वाली पांचवी जो है ट्रांस एसाइलेजेस. सो देर आर 4 सब क्लासेस ऑफ द ऑक्सीडोरिडक्टेज एंड देर आर 5 सब क्लासेस ऑफ द ट्रांसफरेजेस. ठीक है, जो पहला हमारा एंजाइम है. अच्छा, और ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ऑफ द क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कभी भी हम क्लासिफिकेशन का जो ऑर्डर है ना वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ठीक है, इसकी खास वजह है क्योंकि हर एंजाइम को जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एंजाइमोलॉजी है उन्होंने एक नंबर जो दिया हुआ है. ठीक है, तो उस नंबर के अकॉर्डिंगली जैसे ऑक्सीडोरेटेज को 1 नंबर दिया हुआ है, ट्रांसफरेजेस को नंबर 2 दिया हुआ है. ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस को 3 दिया हुआ है, तो हम इसको खुद से नहीं आगे पीछे कर सकते. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जो है इसकी जो है ना ऑर्डर, जिस ऑर्डर में लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले तुम लोग लिख दो हाइड्रोलाइसिस फिर लिख दो लाइगेजेस. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो ये हमने जी लाजमी 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 इसका ऑर्डर याद रखना है. अब थर्ड हमारी जो क्लास है दैट इज हाइड्रोलाइसिस. दे कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ द वाटर
इन द सबस्ट्रेट, ठीक है। वाटर की एडिशन के साथ जो है क्या है कि ये हाइड्रोलिसिस करवाता है। हाइड्रोलिसिस किसी कंपाउंड की करवाने का मतलब जाहिर है कि ये ब्रेक डाउन करवा रहा है, ठीक है। सो दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन, excuse me, involved in the breakdown. So the next is basically हाइड्रोलिसिस में तुम लोग जो है ना जी, सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम लोग उसकी एग्जांपल दे सकते हो लाइपेजेस की, माइलेजेस की। सारे एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करते हैं, जो प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, ठीक है, जो लिपिड्स पे एक्ट करते हैं। तो वी हैव द नंबर ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। किसी की भी एग्जांपल जो है वो हम इजीली दे सकते हैं इसमें। अब हाइड्रोलिसिस में वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। तो हमारे 3 तरह के हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहला है जी प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का मतलब ये है ऐसे एंजाइम जाहिर है जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। अब फर्दर जो है जी इनको, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक्सोपेप्टिडेजेस एंड एंडोपेप्टाइडेजेस। एक्सो का मतलब क्या है? एक्सो मींस आउटसाइड, ठीक है, एंडो मींस इनसाइड। अब हमें पता है कि प्रोटीन के 2 टर्मिनल होते हैं, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल। तो एक्सोपेप्टिडाइजेज ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिर्फ टर्मिनल्स पे एक्ट करेंगे। एक्सो मींस एंड, ठीक है ना, आउटसाइड, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम जो सिर्फ प्रोटीन के जो टर्मिनल्स है ना, सी टर्मिनल या एन टर्मिनल, ये उन पे एक्ट करेंगे। हर प्रोटीन के 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल, एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटीन इज फ्रॉम एन टू सी टर्मिनल, ठीक है, कार्बोक्सी टर्मिनल और एक अमाइनो टर्मिनल। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि एंडिंग पे, टर्मिनल एंड्स पे एक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। और ऐसे एंजाइम्स जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रोटीन, यानी कि सेंटर में जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो पॉलीपेप्टाइड चेन का सेंटर है, उस पे एक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोपेप्टाइडेजेस, ठीक है जी। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमाइनो पेप्टाइडेजेस, ये हैं हमारे एक्सोपेप्टाइडेजेस। और जो सेंटर में एक्ट कर रहे हैं वो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है, ये हमारे सेंटर में एंजाइम है जो एक्ट कर रहे हैं। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, या कार्बोहाइड्रेट की जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, ठीक है। ये तो तुम लोग को बिल्कुल टिप्स पे याद होगा कि स्टार्च को जो एंजाइम ब्रेक कर रहा है उसको हम कह रहे हैं अमाइलेज। और इसी तरह से जी माल्टोज को जो एंजाइम ब्रेक कर रहा है उसको हम कह रहे हैं माल्टेज। सो देयर आर नंबर ऑफ द एग्जांपल्स। कार्बोहाइड्रेट्स में तुम लोग सुक्रोज को जो कर रहा है सुक्रेज, ठीक है। किसी की भी तुम लोग जो है इजीली एग्जांपल दे सकते हो। इसके बाद है लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, इसमें लाइपेजेस इज द वेरी गुड एग्जांपल। दे ब्रेक डाउन द ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड की जब ब्रेकडाउन होती है तो क्या बनता है? 2 चीजें बनेगी हमेशा, एक ग्लिसरॉल और दूसरा फैटी एसिड, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड है तो जाहिर है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज होंगे। यहाँ ट्राइग्लिसराइड है तो डाइग्लिसराइड भी बना सकते हैं, मोनोग्लिसराइड भी बना सकते हैं। तो कोई भी एग्जांपल जो है हम उसकी दे सकते हैं लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स में। इसके अलावा जी वी हैव द बेसिकली कोलेस्टरेजेस जो कि कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम में। इसके बाद है जी फॉस्फोलाइपेजेस जो कि, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिपिड्स की और टाइप्स भी हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं। तो द एंजाइम्स बेसिकली व्हिच एक्ट ऑन द फॉस्फोलिपिड्स दे आर कॉल्ड एज द फॉस्फोलाइपेजेस। इसके अलावा डीएमाइनेजेस, डीएमाइनेजेस आर दोज एंजाइम्स जो कि अमाइनो एसिड से अमाइन ग्रुप की रिमूवल करवा देते हैं, ठीक है। ट्रांसफरेजिस का तो मतलब ये था ना कि अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर करवा देते हैं अमाइनो एसिड और कीटो एसिड के दरमियान। जब डी का वर्ड आ जाएगा तो डी ई मीन्स डिलीट, ठीक है, डिलीट मीन्स रिमूवल। तो डी अमाइनेजेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि अमाइन ग्रुप के किसी भी कंपाउंड से बिल्कुल कंप्लीट रिमूवल करवा देते हैं। और अमाइन ग्रुप जो रिमूव होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड से अगर अमाइन ग्रुप निकल गया तो वो चेंज हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। इसी तरह से जी है जी डी अमाइडेजेस, ठीक है, डी अमाइडेजेस जो अमाइड ग्रुप की रिमूव करवाते हैं। आई टोल्ड यू कि एक अमाइन ग्रुप होता है, ठीक है, और एक है एनएच जो कि है अमाइड ग्रुप, ठीक है। तो जो अमाइड ग्रुप की रिमूवल करवा रहे हैं वो है डी अमाइडेजेस। अनदर इज अदर, अब जो अदर्स हैं, ठीक है, हम अभी कर तो रहे हैं, बट डेफिनेटली इफ द क्लासिफिकेशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम ये बहुत लंबी वाली तो लिख भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो we will focus on the major 6 classes of the enzymes and we will only recall the names of the subclasses.
ठीक है। ये जो डीएमाइनेजेस, डीएमाइनेजेस, ठीक है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये सब पता तो होना चाहिए ये कौन से एंजाइम्स हैं, बट इतने ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट कि इतना ज्यादा आएगा इनके बारे में भी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है मेजर क्लासेस के लिए, ठीक है, यहाँ सब क्लासेस जो है। तो जी हमने अगर हाइड्रोलेजेस आ गया तो उसकी 3 सब क्लासेस हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, ठीक है। तो वी हैव नथिंग टू डू विद द डीएमाइनेजेस एंड डीएमाइनेजेस, ओके। अब जो मिसलिनियस है अदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जैसे फॉस्फेटेजेस है, ठीक है जी, ये जो सब लिखे हुए हैं ये भी जो है दी ज्यादा एक्स्ट्रा, ठीक है। नेम, जो नाम होगा उससे तुम लोगों को समझ आ जाएगी कि ये एंजाइम जो है क्या कर रहा है। जैसे कि फॉस्फो मोनो ईस्टरेजेस हैं, तो जाहिर है ये मोनो ईस्टर ग्रुप्स जो लिपिड्स के ग्रुप हैं उन पे एक्ट कर रहा है। फॉस्फोडाइस्टरेजेस हैं तो फॉस्फेट डाई ईस्टर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम ये इतने ज्यादा जो इसकी क्लासिफिकेशन है ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट क्लासिफिकेशन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइडेजेस हैं, ज़ाहिर है ये न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट कर रहा है। एंजाइम के तो नाम से ही पता चल जाता है कि एंजाइम एक्ट किस पे कर रहा है। बट हाइड्रोलेजेस जो है ना वो तुम लोगों ने उतना ही करना है लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स तक, बस दैट इज। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी 4th क्लास में, विच इज लाइगेजेस, ठीक है। लाइगेज का मतलब होता है ज्वाइनिंग, ठीक है। लाइगेज का मतलब है ज्वाइनिंग। दे कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ ज्वाइनिंग टू कंपाउंड्स। अब 2 कंपाउंड्स को ज्वाइन करवाने के लिए भी कोई एंजाइम चाहिए ना, ठीक है। तो जो एंजाइम 2 कंपाउंड्स को ज्वाइन करवाता है उनके दरमियान लिंकेज बनाता है, ज्वाइन कैसे करवाएगा, उनके दरमियान बॉन्ड बनाएगा, सी डबल बॉन्ड, सी एम बॉन्ड, ठीक है, सी एस बॉन्ड, ठीक है, कोई ना कोई बॉन्ड लिंकेज बनाएगा तो जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में मिलेंगे ना, जुड़ेंगे। तो जो एंजाइम कंपाउंड्स को ज्वाइन कर रहा है उसको हम कह रहे हैं जी लाइगेज, ठीक है। जैसे सक्सेनिक एसिड और कोएंजाइम जो सक्सिनाइल है ये ऐड हो रहे हैं और ये ज्वाइन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइगेज एंड दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट सक्सिनाइल एस कोएंजाइम ए, ठीक है, सक्सिनाइल एस कोएंजाइम ए। इस तरह से जी लाइएजेस हैं। लाइएजेस जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं दे कैटलाइज द ब्रेक डाउन lysis of the compound by removing a group from it without the addition of the water molecule. अब there is a difference between the hydrolases and lyases, क्योंकि hydrolases भी ब्रेक डाउन करवा रहे हैं, lysis करवा रहे हैं, ठीक है, और lyases भी जो है वो ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों में? पहला फर्क तो ये है कि जो हाइड्रोलेजेस हैं जब भी वो ब्रेक डाउन करवाएंगे तो वो विद द एडिशन ऑफ वाटर करवाते हैं, ठीक है। But in the case of lyases there is no addition of the water, ठीक है, to the substrate. Substrate में हम कोई water की addition नहीं कर रहे, ठीक है। और lyases जो break down करवा रहे हैं they do the breakdown of the compound by removing a group from it, कि ये जो break down ऐसे कराते हैं कि पूरे substrate को नहीं तोड़ते, ठीक है, बल्कि उसमें से एक ग्रुप को रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। तो और जब भी ग्रुप रिमूव हो जाएगा तो फिर उसमें बाद जो है ना जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी उसमें डबल बॉन्ड आएगी, जैसे कि मैलिक एसिड इज चेंजिंग इनटू फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड वगैरह शो नहीं की हुई, बट यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलेजेस एंड लाइएजेस। आई एम रिपीटिंग इट, लाइएजेस कैटलाइज द lysis of the compound by removing a group from it, उसमें से सबस्ट्रेट में से किसी ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, किसी ग्रुप की ब्रेकडाउन करवा देते हैं, पूरे सबस्ट्रेट की नहीं करवाते। और सेकेंडली ये जो ग्रुप की रिमूवल हो रही है या जो ब्रेकडाउन हो रही है वो हो रही है विद द विदाउट द एडिशन ऑफ द वाटर, ठीक है। आइसोमरेजेस, आइसोमरेजेस आइसोमर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ द आइसोमर्स ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो आइसोमरेजेस क्या कर रहे हैं, आइसोमरेजेस कर रहे हैं आइसोमर्स बना रहे हैं, ठीक है। जो एंजाइम आइसोमर्स बनाने में हेल्प करेगा उसको हम कहेंगे आइसोमरेजेस। जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज इज चेंजिंग इनटू fructose 6 phosphate and glucose and fructose are isomers of each other and the enzyme is phosphohexoisomerase. तो जी ये है जी हमारी 6 क्लासेस जो एंजाइम्स की, ठीक है। इसको लाजमी रिव्यू करना है ताकि इसमें कोई मसला हो तो हम कर लें। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि वी शुड बी वेल वर्स्ड विद द मेजर 6 क्लासेस। मेजर 6 क्लासेस को तो अजबर कर लेना है ना, रट लेना है। फिर जो सब क्लासेस हैं उनके कम से कम नाम आने चाहिए। अब मेजर जो 6 क्लासेस है ना उनमें कम से कम एक एक एग्जांपल, एक रिएक्शन, 6 रिएक्शन तुम लोग याद करने हैं। इनका तो एक एक ही दिया हुआ है, आइसोमरेज का एक ही दिया हुआ है, लाइएज का एक ही दिया हुआ है,
और इससे ऊपर जो लाइगेज है उसका भी एक ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो 3 रिएक्शन है सिंपल, और बाकी जो 3 क्लासेस है ना उसमें से कोई भी तुम लोग 3 रिएक्शंस उस क्लास से रेलिवेंट वो तुम लोग याद कर लो, यानी कि 6 क्लासेस के 6 रिएक्शंस हमें याद होने चाहिए और 6 एंजाइम के नाम भी। जैसे कि ये अगर रिएक्शन नहीं खाली याद रखना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा है, अब इसमें इसको जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है फोस्फोएक्सोआइसोमरेज वो भी याद रखने, ठीक है। तो एंजाइम्स के नाम जो है ना वो लाजमी हमने याद रखने हैं। अब जी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सर्टन टर्मिनोलॉजीज हैं रिगार्डिंग द, जी जिनको कनेक्शन प्रॉब्लम है प्लीज वो रिकनेक्ट कर लें। कौन कह रहा है? मुकद्दस, रिकनेक्ट कर लो, यहाँ तो सिग्नल ठीक है। जी आवाज आ रही है मेरी सबको? दास BSN, ताकि हम जो है ना नेक्स्ट 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 मूव करें। अब है जी एंजाइम की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स बेसिकली, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स के दे आर प्रोटीन इन नेचर, दे नेवर इनिशिएट द रिएक्शन, दे रिड्यूस द एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है एंजाइम्स की। प्रॉपर्टीज सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि दे आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है, कि एंजाइम स्पेसिफिक बहुत है। देखो आप जो सुक्रेज है वो सिर्फ सुक्रोज पे एक्ट करेगा, कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो सुक्रेज एंजाइम है वो माल्टोज पे एक्ट कर ले, या जो सुक्रेज एंजाइम है वो ग्लूकोज पे एक्ट कर ले, ठीक है। तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर। प्लस सेकंड चीज ये कि जो एंजाइम्स हैं ये कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, ठीक है। तीसरी चीज ये दे आर प्रोटीन इन नेचर। अब हम ये कहेंगे मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। 100% सारे एंजाइम्स नहीं है प्रोटीन, ठीक है, बट 90% ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अब और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जी ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करते हैं। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है बेसिकली, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी or the calories which is required by the reactants to start the reaction, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी रिएक्टेंट्स को चाहिए ना रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो है जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और एंजाइम उसको कर देगा लो, रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा और एनर्जी को कम कर देता है। हर एंजाइम के अंदर एक स्पेसिफिक 3 डिमेंशनल कैविटी होती है, ठीक है। देयर इज द 3 डिमेंशनल कैविटी इन ऑन द सरफेस ऑफ द or on the center of the enzyme, and that cavity is basically called as the active site। जी किसका क्वेश्चन है? जी अदील का। देखो एंजाइम्स जो है ना वो माइन्यूट अमाउंट में भी जो है ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, बिकॉज ऑफ देयर इफेक्टिव, they are so much effective that they are required in a very minute amounts in a very small amount, कि small amount से भी हमारा काम चल जाएगा। अगर कोई चीज हमें कम अमाउंट में अगर रिजल्ट 100% दे रही है तो why there is a need to put on the more enzymes, ठीक है। सो जो एंजाइम है स्मॉल अमाउंट में भी काफी एक्टिव होता है, रिएक्टिव होता है, एंड इट कैन एक्सेलरेट द रिएक्शन। So that's why they are required in the minute amounts, in the small amounts. That is the quality of the enzyme. Basically, that is the feature of the enzyme, property of the enzyme. Now there is I was telling that there is a 3-dimensional cavity on the surface of the enzyme, and that cavity is basically called as active site of the enzyme। और ये जो एक्टिव साइट है बेसिकली ये वो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट ने जाके एक्ट करना है, सबस्ट्रेट ने जाके बाइंड करना है, सबस्ट्रेट ने जाके कंबाइन करना है, ठीक है। तो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो बनेगा एक्टिव साइट के ऊपर, ठीक है। तो एक्टिव साइट इज द 3-dimensional कैविटी ऑन द एंजाइम, ठीक है, पॉकेट टाइप एक होती है एंजाइम के अंदर, ठीक है, जहां पे जाके सबसेट फिट करता है, बाइंड करता है। एक्टिव साइट कंटेन्स द अमाइनो एसिड चेन्स दैट क्रिएट द 3-dimensional स्ट्रक्चर सरफेस। 3-dimensional कैविटी होती है और हम अमाइनो एसिड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो हमारी जो एक्टिव साइट होगी उसकी कंपोजिशन क्या होगी? एक्टिव साइट की कंपोजिशन होगी जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि सारी प्रोटीन्स जो है ना वो एंजाइम्स नहीं बनाती हैं, ठीक है। सुन लो, प्रोटीन्स का सबसे पहले तो खुद से इटसेल्फ, अदील का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल में,
सो नहीं, मुकद्दस का क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई एम बेसिकली रिप्लाइंग टू मुकद्दस कि जो प्रोटीन्स है ना, दे आर द बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स का अलग से एक काम है, सबसे जो प्राइमरी उसका फंक्शन है ना, वो आपकी बॉडी बिल्डिंग है, ग्रोथ है, बॉडी का हिस्सा है, ये मेजर फंक्शंस हैं। ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं कि हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके और काम भी हैं, ठीक है। प्रोटीन्स तो वो बनाते हैं लेकिन एंजाइम्स भी बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन भी बना रहे हैं और अमाइनो एसिड एंजाइम भी बना रहे हैं मिलके, ठीक है ना। तो अमाइनो एसिड जब मिलेंगे तो उसको हम प्रोटीन ही कह रहे हैं ना। तो अमाइनो एसिड्स मिलके बेसिकली एक कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं एंजाइम्स। क्योंकि वो कंपाउंड अमाइनो एसिड से मिलके बना है, इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम्स आर मोस्टली दे आर प्रोटीन इन नेचर। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि प्रोटीन भी जो है ना वो एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है हमारा, सॉरी, इसके बाद जो जी है हमारा नेक्स्ट, देखो जो अमाइनो एसिड्स है ना वो मिलके हार्मोन्स भी बना रहे हैं, ठीक है, और भी कंपाउंड्स बना रहे हैं, सिर्फ एंजाइम्स नहीं बना रहे हैं। तो देयर आर सर्टेन अदर फंक्शंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स एज वेल। Enzymes catalyzed reactions are highly efficient, accelerating the reaction 3 to 8 times faster than the uncatalyzed reactions। जो जिन रिएक्शंस में एंजाइम्स नहीं होगा पहले तो वो स्पीड अप ही नहीं होंगे, चलेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन वैसे एक आइडिया के मुताबिक जो जिन रिएक्शंस में एंजाइम्स होते हैं वो 3 to 8 टाइम्स फास्टर होते हैं, ठीक है। और जो एंजाइम की एक्टिविटी है इसको हम मजीद एक्टिवेट भी कर सकते हैं और हम इसको इनहिबिट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड और इट कैन बी इनहिबिटेड। अब एक और टर्म है विच इज कोफैक्टर, जो हमने पहले भी बड़ी दफा किया होगा। कोफैक्टर क्या चीज है, ठीक है। दीज आर द नॉन प्रोटीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। दो चीजें हैं, एक को एंजाइम्स हैं और कोफैक्टर्स हैं। दोनों क्या करते हैं जी, के एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स भी और को एंजाइम्स भी। एंड वी ऑल नो कि जो को एंजाइम्स है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेलरेट द रिएक्शन। रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम को एक हेल्पर चाहिए जिसको हम कह रहे हैं को एंजाइम या को फैक्टर, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जी को फैक्टर है जी वो नॉन प्रोटीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो इनऑर्गेनिक होगा हमेशा। और जो को एंजाइम है वो हमेशा नॉन प्रोटीन तो दोनों होंगे लेकिन वो ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग इट, को एंजाइम इज द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, एंड को फैक्टर इज द नॉन प्रोटीन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। अब को फैक्टर इनऑर्गेनिक है तो इसमें ज्यादातर आ जाते हैं आपके मेटल एटम्स, ठीक है। सोडियम आ जाएगा, निकल आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो को फैक्टर्स इंक्लूड द metal atoms mostly because they are the inorganic compounds, they cannot be dialyzed out, इनकी डायलिसिस वगैरह नहीं हो सकती। और जो कोएंजाइम्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, और ये मोस्टली दे आर द एंजाइम्स इन नेचर। इसमें ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि एंजाइम्स हैं, जैसे कोएंजाइम है, एफएडी है, एनएडी है, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये आपके को एंजाइम्स जो कि हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो आपका को फैक्टर है वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन है ना को फैक्टर एंड को एंजाइम, ये भी हमने लाजमी जो है जी वो याद रखना है, को फैक्टर और को एंजाइम का जो डिफरेंस है। उसके बाद ये को एंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ना, जो बी ग्रुप के हमारे विटामिन है ना वो नॉर्मली एक्ट करते हैं एज अ को एंजाइम, ठीक है। जैसे कि थायामिन है, ठीक है, जिसको हम विटामिन बी1 भी कहते हैं, उसका जो को एंजाइम है दैट इज थायामिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी। तो मोस्टली हमारे जो को एंजाइम्स है ना ये हमारे विटामिन हैं, इनकी नेचर हमारे विटामिन हैं, क्योंकि विटामिन की ही जो एक्टिव फॉर्म है वो एज अ को एंजाइम एक्ट करती है। जैसे कि थायामिन का मैं तुम लोगों को बता रही हूँ कि थायामिन की जो फॉर्म है कोएंजाइम वो है टीपीपी। इसी तरह से राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 को कहते हैं, ठीक है। अब इसकी कोएंजाइम फॉर्म कौन सी है? एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एफएमएन। तो एफएमएन एफएडी जो है ना ये है राइबोफ्लेविन की कोएंजाइम फॉर्म्स। इसी तरह से जो फॉलिक एसिड है, जो हमारा विटामिन बी9 है, ठीक है, उसकी भी कोएंजाइम फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड।
तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे को एंजाइम्स है ना वो मोस्टली विटामिन्स हैं, और जो हमारे जी हैं को फैक्टर्स वो हमारे हैं मेटल एटम्स। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिकली फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? सिंपली इट इज अ टाइटली बाउंड कोएंजाइम दैट डज नॉट डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम दैट इज बायोटिन ऑफ द कार्बोक्सिलेज। प्रोस्थेटिक ग्रुप देखो, दोनों प्रोस्थेटिक ग्रुप ही है, को फैक्टर हो या कोएंजाइम हो। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब ये है कि टाइटली बाउंड जो कोएंजाइम है वो जब टाइटली बाउंड हो जाएगा एंजाइम के साथ कि हम उसको एंजाइम से लैदा ना कर सकें, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसकी एग्जांपल कोएंजाइम ही है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम जो है ना वो तकरीबन एक ही बात है। ठीक है, टाइटली बाउंड कोएंजाइम जो कि एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसको हम सेपरेट ना कर सकते हो। एपो एंजाइम, अब देखो एंजाइम में हमने देखा दो चीजें हैं, एक प्रोटीन पार्ट है और एक है नॉन प्रोटीन पार्ट। देखो एंजाइम प्रोटीन पार्ट और जो को एंजाइम या को फैक्टर हैं दोनों क्या हैं? दोनों नॉन प्रोटीन पार्ट्स है ना। को फैक्टर भी नॉन प्रोटीन है, को एंजाइम भी को नॉन प्रोटीन है, दोनों नॉन प्रोटीन्स हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम है उसको सेपरेट नाम दे दिया है। प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज द एपो एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज द एपो एंजाइम। और ये जो दोनों चीजें जब मिल जाएं, एपो एंजाइम और को एंजाइम, तो इसको हम कह रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द होलो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम एंड द को एंजाइम दोनों मिलके बना रहे हैं होलो एंजाइम। ठीक है जी, एपोएंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ द holoenzyme. In the absence of the appropriate coenzyme, एपोएंजाइम does not show the biological activity. coenzymes इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर हम इसको एंजाइम में से रिमूव कर दें coenzyme को, तो एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। इट मींस coenzymes and cofactors both are essential फॉर द एंजाइम। ठीक है, और होलो एंजाइम क्या है? दोनों को मिला दो, एपो एंजाइम और को एंजाइम जब दोनों मिल जाएंगे तो कंप्लीट एंजाइम बन जाएगा ना। तो उस कंप्लीट एंजाइम को हम कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द होलो एंजाइम। ठीक है, मेरा ख्याल है 5-10 मिनट की ब्रेक करते हैं और उसके बाद ये टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पढ़ते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है जी क्लास, सो वी हैव द ब्रेक ऑफ द 10 मिनट्स और उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स यानी कि आइसो एंजाइम्स और आइसोजाइम्स। ठीक है, तो 10 मिनट्स बाद एग्जैक्ट जो है आई एम कमिंग अगेन, और उसके बाद जी हम ये कर रहे हैं आइसो एंजाइम्स। ठीक है, सो डोंट गो एनीवेयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाग जाओ, बस 10 मिनट की ब्रेक है, पानी शानी पी लें जरा, और जो है ना तुम लोग से फिर बाद में करते हैं बात। अभी 10 मिनट्स ब्रेक लिख भी रही हूँ। ठीक है जी, 10 मिनट्स ब्रेक के बाद वी विल बी बैक। ओके।
जी स्टूडेंट्स, आर यू बैक? सब बच्चे आ गए हो वापस आफ्टर a mini teeny break. So, are you back, girls? Hello, hello. Girls, are you back? जी ओके गुड. निम्रा ने क्वेश्चन मेरे ख्याल में किया है, और किसने किया है जी? जैनब ने क्वेश्चन किया है कि एंजाइम और होलो एंजाइम में कोई फर्क है? तो जी बिल्कुल फर्क है, क्योंकि एंजाइम और जो को एंजाइम दोनों का कॉम्बिनेशन है ना होलो एंजाइम. ठीक है, एंजाइम और को एंजाइम दोनों मिलेंगे तो वो बनाएंगे होलो एंजाइम. यानी कि एंजाइम है प्रोटीन पार्ट और को एंजाइम है नॉन प्रोटीन पार्ट. ठीक है, तो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मिलेंगे तो दोनों बना रहे हैं जी होलो एंजाइम. ठीक है, तो होलो एंजाइम is the compound which contains two things. One is enzyme and one is coenzyme. ठीक है, तो ये फर्क है एंजाइम और होलो एंजाइम में. दूसरी चीज निम्रा ने क्या पूछा है कि प्लीज रिपीट द नेम ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच हैव द कोएंजाइम्स. तो जितने ये तुम्हारी किताब में ऊपर लिखे हुए हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो यानी कि हमारी बी ग्रुप की जो विटामिन हैं, एक तो विटामिन ए डी ई के है ना जो फैट सॉल्युबल है, दूसरी हमारी जो वाटर सॉल्युबल हमारा जो बी कॉम्प्लेक्स B1 B2 विटामिन हमने खैर करने भी हैं, B3. तो ये जो विटामिन है ना ये जो है ना कुछ कोएंजाइम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि विटामिन B1 थायामीन. ठीक है, तो ये कोएंजाइम फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इसकी कोएंजाइम फॉर्म को हम कहते हैं थायामीन पायरोफॉस्फेट. ठीक है, इसी तरह से ही है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ये भी कोएंजाइम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसकी कोएंजाइम की फॉर्म को हम कहते हैं फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो ये टेबल में जो है ना ये 3-4 तुम लोग बल्कि सारी भी कर सकते हो, कि इतना मसला नहीं है. ठीक है, कि हर विटामिन की एक कोएंजाइम, काफी विटामिन की एक कोएंजाइम फॉर्म है. ठीक है, तो जो 4-5 मेंशन है वो हम कर लेंगे याद. ठीक है जी. एंजाइम में तो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जी. एंजाइम में कौन सा नॉन प्रोटीन पार्ट है? जो एंजाइम है वो प्रोटीन पार्ट है, उसके साथ को एंजाइम मिलेगा तो को एंजाइम नॉन प्रोटीन है. ठीक है, एंजाइम सारा ही प्रोटीन है ना. मैंने ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. देखो 20वीं सेंचुरी तक यही कंसेप्ट था कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन है. ठीक है, 21वीं सेंचुरी में एक एंजाइम डिस्कवर हुआ जिसकी नेचर प्रोटीन नहीं थी बल्कि वो न्यूक्लिक एसिड था. उसका नाम था राइबोजाइम. ठीक है, राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है कि जो काम तो एंजाइम्स वाले करता है लेकिन वो प्रोटीन नहीं है. राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि एक न्यूक्लिक एसिड है लेकिन फंक्शन उसका ये है कि वो चीजों को तोड़ता है, ब्रेक करता है, चॉप करता है. ठीक है, काम उसका एंजाइम्स वाला है. तो 21वीं सेंचुरी में राइबोजाइम की डिस्कवरी के बाद ये स्टेटमेंट आई कि हम ये कह सकते हैं कि नॉट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. पहले हमेशा से ये स्टेटमेंट थी कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. ठीक है, इज इट क्लियर कि हम अब ये कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर. नॉट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, क्योंकि हमारे पास एक एक्सेप्शन है, एक ऐसा एंजाइम है जो कि जिसकी नेचर प्रोटीन नहीं है. ठीक है, अब जी आ जाए हम जरा वापस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पे, आइसोजाइम्स और आइसो एंजाइम्स. ठीक है, जैसे आइसोमर्स है ना इसी तरह से हैं जी आइसो एंजाइम्स भी. तो आइसो एंजाइम्स क्या हैं? दीज आर द enzymes that catalyze the same reaction but they have the same chemical properties but they are different in their structure. तो ऐसे एंजाइम्स जिनका जो क्या कर रहे हैं कि जी सेम रिएक्शन कोई कैटलाइज कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम है लेकिन स्ट्रक्चर उनका फर्क है, जैसे आइसोमर्स होते हैं. ठीक है ना, स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स इनकी डिफरेंट है बट ये क्या कर रहे हैं, सेम रिएक्शन को ही कैटलाइज कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहेंगे आइसोजाइम्स और आइसो एंजाइम्स. अब इनकी एग्जांपल्स दी हुई है. ठीक है, जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, अल्कलीन फॉस्फेटेज है, क्राटीन फॉस्फोकाइनेज है. ठीक है,
तो ये ऐसे एंजाइम्स हैं कि जिनकी डिफरेंट सब यूनिट्स हैं, ठीक है। वो एक से ज्यादा सब यूनिट में ये एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं, एक से ज्यादा सॉरी एक से ज्यादा सब यूनिट में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी हम इनको आइसोजाइम कह रहे हैं। ठीक है जी। अब इनकी जो है ना एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, एग्जांपल्स भी बड़ी अच्छी दी हुई है, ठीक है। जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की मैं बात कर रही हूँ, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है उसकी सब यूनिट जी इन्होंने दी हुई है। कितनी सब यूनिट्स हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की, ठीक है। 5 सब यूनिट्स जो है ना, 5 डिफरेंट 5 सब यूनिट्स नहीं, 5 डिफरेंट टाइप्स के जो है ना लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज दैट आर गिवन, ठीक है। अब उनकी डिफरेंस की वजह क्या है? डिफरेंस की वजह ये है कि उनके स्ट्रक्चर में कोई कंपोनेंट का फर्क है, और प्लस उनकी हमारी बॉडी में जो लोकेशन है ना जहाँ पे वो पाए जाते हैं वो भी डिफरेंट है, ठीक है। स्ट्रक्चर का फर्क है, और इसके अलावा जो है वो उनकी उनकी लोकेशन का भी फर्क है, ठीक है। बॉडी में कहाँ पे वो एंजाइम पाए जाते हैं उस लोकेशन का भी डिफरेंस है। तो अभी हम जी करते हैं कौन सा एंजाइम है जी, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब देखो इसकी जो सब यूनिट्स हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की, वो लिखा हुआ है HHH। अगर H वाली सारी सब यूनिट्स हैं इसका मतलब है ये कार्डिक मसल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर H के साथ जो M वाली भी है तो इसका मतलब है कार्डिक और स्केलेटल मसल दोनों में प्रेजेंट है। और अगर तुम देखो M वाली सारी सब यूनिट्स हैं, यानी कि LDH1 LDH2 LDH3 LDH4 LDH5, हम ये कह सकते हैं कि ऐसा एंजाइम जो कि एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे उसको हम कह रहे हैं आइसो एंजाइम्स। ये जो एक से ज्यादा फॉर्म्स हैं ये सारी फॉर्म्स एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेंगी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन सेम है लेकिन बॉडी में उसकी लोकेशन फर्क है, ठीक है। तो केमिकली दे आर सेम बट फिजिकली जो है अपेरेंटली दे आर डिफरेंट। तो जी LDH1 LDH2 LDH3 4 5 पांचों में फर्क है। कोई कार्डिक मसल में प्रेजेंट है, M वाली जो है वो जो है आपके स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट है, कोई दोनों में प्रेजेंट है, कार्डिक में भी और स्केलेटल मसल्स में भी, ठीक है। तो जी आपकी जो आइसो एंजाइम्स हैं इनका मतलब ये है कि ऐसे एंजाइम्स जिनका केमिकली दे आर सेम, केमिकली वो एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करेंगी, बट क्या है कि इनकी सब यूनिट्स डिफरेंट हैं, ठीक है। जैसे कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, काम उसका डिहाइड्रोजिनेज का क्या है? हाइड्रोजन की रिमूवल करवाता है लैक्टेट से, ठीक है। काम उसका यही है, लेकिन क्या है डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। अब जो LDH1 है वो कार्डिक मसल्स में है, ठीक है ना। 2 3 जो है और 4 वो दोनों में है, कार्डिक में भी स्केलेटल में भी, और जो LDH5 है वो सिर्फ स्केलेटल मसल्स में है। इसी तरह से CPK की भी 3 सब यूनिट्स हैं, CPK-M भी सिर्फ कार्डिक मसल्स में है, ठीक है। CPK जो BB है वो ब्रेन टिश्यूज में है, और CPK जो MM है वो सिर्फ स्केलेटल मसल्स में है। इज इट क्लियर कि इनकी जो लोकेशन है हमारी बॉडी में वो भी डिफरेंट है, ठीक है। सिर्फ सब यूनिट्स ही नहीं डिफरेंट, बल्कि बॉडी में जिस जगह पाए जाते हैं वो लोकेशन भी डिफरेंट है। सो दीज आर द बेसिकली आइसो एंजाइम्स। इसी तरह से LDH और जो CPK है ये तो 2 एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से और भी एंजाइम्स हैं, जैसे कि अल्कलीन फॉस्फेटेज है, ठीक है, एक एंजाइम, और भी एंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। और जो एंजाइम्स डिफरेंट सब यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी लोकेशन भी बॉडी में डिफरेंट है, काम वो एक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स को हम कहेंगे आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स। अब जो जी लाइसो एंजाइम्स हैं, ठीक है ना, लाइसोजाइम्स ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तुम लोगों ने माइक्रो में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट इन सलाइवा में है, टीयर्स में है, प्रेजेंट होते हैं, नेजल सिक्रीशंस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे प्रोटेक्टिव एंजाइम्स है ना, कि ये बैक्टीरिया को बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमें बचाते हैं, लाइसो एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद जाइमोजेंस और द प्रो एंजाइम्स, ठीक है। प्रो का मतलब या प्री एंजाइम्स भी इसको कहते हैं, या प्रो एंजाइम्स भी कहते हैं। प्रो प्री का मतलब है पहले। तो ऐसे एंजाइम्स जो कि अपनी नेटिव स्टेट में, ठीक है, जो अपनी नेटिव स्टेट में इनएक्टिव होते हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज द जाइमोजिन और द प्रो एंजाइम्स, बिकॉज एंजाइम्स आर नॉट एक्टिव ऑल द टाइम इन आवर बॉडी। देखो हर वक्त हमारी बॉडी में एंजाइम एक्टिव नहीं है, ना हो सकते हैं। जिस एंजाइम की जब जरूरत है वो तभी ही एक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर बॉडी को जरूरत, तुम लोगों ने अभी कार्बोहाइड्रेट्स खाए ही नहीं है,
ठीक है, तो अमाइलेज कैसे एक्टिव हो जाएगा मुझे बताओ? प्रोटीन ली नहीं है तो पेप्सिन ट्रिप्सिन कैसे एक्टिव हो जाएंगे? लिपिड्स खाई नहीं है तो लाइपेज कैसे एक्टिव हो जाएगा? तो एंजाइम्स आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेनेवर दे आर नीडेड इन आवर बॉडी। हर वक्त एंजाइम्स हमारी बॉडी में एक्टिव नहीं होते हैं, ये सिर्फ तब ही एक्टिव होंगे जब इनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन दे आर नीडेड इन आवर बॉडी। ठीक है जी, तो इससे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म इन आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, उसको हम कह रहे हैं प्रो एंजाइम्स या जाइमोजिन्स। ठीक है जी, तो ये हर वक्त नहीं इनएक्टिव, जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको हम कह रहे हैं zymogens. These are the proteolytic enzymes which are secreted in their inactive form in order to protect the tissue that secrete them from the auto digestion. देखो, अगर इसका मतलब ये ऑटो डाइजेशन का मतलब ये है कि अगर एंजाइम हर वक्त ही secrete होते रहे तुम्हारी बॉडी में, अब जैसे प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स है ना, ठीक है ना, तो अगर मुझे ये बात बताओ कि प्रोटीन तुम लोगों ने खाई नहीं है, तो प्रोटीएजेस एक्टिव हो जाए तो वो क्या करेगा? वो तो फिर बॉडी की अपनी प्रोटीन को खा जाएगा ना, बॉडी भी तो प्रोटीन से बनी है ना, बॉडी में भी तो प्रोटीन है ना। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं जी वो हमेशा एक्टिव नहीं होते, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द स्टेट ऑफ इनएक्टिवनेस। ठीक है, ये तभी एक्टिव होंगे जब इनकी जरूरत होगी, वरना ये ऑटो डाइजेशन कर देंगे, बॉडी को खुद से ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे कि पेप्सिनोजिन है, पेप्सिनोजिन इज द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ट्रिप्सिनोजिन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजिन क्या है? ये इनएक्टिव फॉर्म कौन से एंजाइम की है? ट्रिप्सिन की। तो बॉडी में पेप्सिन हमारी फॉर्म में प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजिन की फॉर्म में। जब तुम लोग कोई प्रोटीन्स वगैरह खाते हो तो फिर इसको सर्टेन एंजाइम्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कि पेप्सिनोजिन को चेंज कर देंगे पेप्सिन में, ट्रिप्सिनोजिन को चेंज कर देंगे ट्रिप्सिन में। ठीक है, तो हर वक्त ये पेप्सिन ट्रिप्सिन एक्टिव नहीं होते, इसी तरह से बाकी एंजाइम्स भी। ठीक है, ये अपनी प्रो फॉर्म में बॉडी में बैठे रहते हैं, जब इनकी जरूरत होती है तब ये जी एक्टिव होते हैं। और एक्टिव करवाने के लिए भी एक सिस्टम है, ठीक है, खुद ही एक्टिव नहीं हो जाते, जाहिर है देयर आर सर्टेन एंजाइम्स। और इनएक्टिव का मतलब पता क्या है? इनएक्टिव का मतलब आई एम टेलिंग यू के एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ना, जो इसमें 3 डिमेंशनल कैविटी है जिस पे जाके सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है। ठीक है, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट बनेगी ना। तो एंजाइम ने करना क्या है? ये एक्टिव और इनएक्टिव की कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो 3 डिमेंशनल कैविटी है ना, एक्टिव साइट, उसको ऊपर अमाइनो एसिड्स की एक लेयर आ जाती है, यानी कि उसको कवर कर दिया जाता है। यानी कि जो चीज एक्टिव है ना, उस एक्टिव साइट जिसने काम करना है उसको उन्होंने छुपा दिया है, उसको उन्होंने कवर कर दिया। तो एंजाइम क्या बन गया है? अब बन गया है इनएक्टिव। अब जब इसकी जरूरत पड़ेगी फिर क्या होगा? फिर हमारी बॉडी में सर्टन एंजाइम्स रिलीज होंगे, सिक्रीट होंगे। उनका काम ये है कि उन्होंने ये जो ऊपर एक लेयर हमने बना दी थी ना एंजाइम को इनएक्टिव करने के लिए, उन्होंने इस लेयर को रिमूव कर देना है। जब वो लेयर रिमूव हो जाएगी तो एक्टिव साइट क्या हो जाएगी? एक्सपोज हो जाएगी। एंड व्हेन द एक्टिव साइट विल बी एक्सपोज्ड देन एंजाइम विल बी कम इनटू इट्स एक्टिव स्टेट। ठीक है, तो एक्टिव साइट की सारी कहानी है कि एक्टिव साइट को कुछ अमाइनो एसिड्स की, फ्यू अमाइनो एसिड्स की एक चेन से बंद कर दिया जाता है, तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, zymogen स्टेट में चला जाता है। एंड व्हेन दैट लेयर ऑफ द फ्यू अमाइनो एसिड हैज बीन रिमूव्ड बाय सर्टेन एंजाइम्स, एंजाइम विल कम बैक टू इट्स एक्टिव फॉर्म। ठीक हो गया जी। अब जी इसके बाद क्या है जी? ये तो सब उनकी एक्टिव काइमोट्रिप्सिनोजिन और उसकी एक्टिव फॉर्म्स और इनएक्टिव फॉर्म्स ही लिखी हुई हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द एंजाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट के एंजाइम और जो सबस्ट्रेट हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत इजी है कि एंजाइम बाइंड करेगा सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? ईएस कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेंगे और ये बना देंगे ईएस कॉम्प्लेक्स। फिर ये ईएस जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये चेंज होगा किसमें? ई और पी में, यानी कि पी इज फॉर प्रोडक्ट और ई इज फॉर एंजाइम, यानी कि हमें एंजाइम आपका उसी तरह से वापस मिल जाएगा और आपकी प्रोडक्ट मिल जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हैं इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के। ठीक है, तो देयर आर 2 स्टेप्स जो मैं लिख भी रही हूँ, 2 स्टेप्स हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के पहले जो है जी एंजाइम और सबस्ट्रेट ये कंबाइन करेंगे और ये बनाएंगे ई एस कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, 2 स्टेप्स हैं, कभी आ जाए ना, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ई और एस मिलके ई एस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और दूसरा हमारा जो स्टेप है ना वो ये है कि ये जो ई एस कॉम्प्लेक्स है ना, ये ब्रेकडाउन होगा, ये चेंज होगा, तो ये बनाएगा जी प्रोडक्ट और प्लस एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम जो ई था, देखो ई हमें बिल्कुल वैसे ही नेटिव स्टेट में जैसे हमने ई डाला था ना, वैसे ही ई हमें वापस मिल गया, प्रोडक्ट और ई। ई एस कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। ये 2 स्टेप्स हैं सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम के। ठीक है, तो जब भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम आ जाए ना, ये 2 इस तरह इक्वेशंस की फॉर्म में हम ये 2 स्टेप्स लिख दें तो बड़े इंप्रेसिव लगते हैं बजाय पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने से। ठीक है, तो ये ई और एस यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ने मिलकर ई एस कॉम्प्लेक्स बना दिया, सिर्फ 2 स्टेप का है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और फिर ई एस कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ई एस कॉम्प्लेक्स जो है जी, जब ये ब्रेक हुआ एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, तो क्या हो गया कि आपके एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स जब ब्रेक हुआ तो इसने प्रोडक्ट बना दी, और प्लस ई आपको वापस मिल गया, जो नेटिव फॉर्म में मिल गया, किसी भी और रिएक्शन में वो यूज हो सकता है। अच्छा जी, अब फैक्टर्स विद अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, ये सर्टन फैक्टर्स हैं जो हम पहले भी करते रहे हैं। ठीक है, तुम लोग एफएससी में भी करते रहे हो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में रमज़ान है, रोज़े हैं, तो आई थिंक दैट इज़ रियली रियली, तुम लोग तो सुन रहे हो ना, बट दैट इज़ रियली वेरी हार्ड टू कंटिन्यू स्पीक फॉर 2 hours। और एंड यू नो कि बोलती भी ऊंचा हूँ, बोलती भी तेज हूँ, तो एनर्जी लेवल जो है ना वो डाउन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी तो ऐसा है कि बाद में कुछ खा पी सकता है बंदा, लेकिन रमजान में तो फिर जो है कि सब्र करना पड़ता है, तो इस वजह से आज हम इंशाल्लाह ये इसके फैक्टर्स भी कर ही लेते हैं। तो जी, फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पे एक्ट करता है, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कि अगर तुम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इफ वी इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना वो ये है कि द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन इंक्रीजेस विद द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन until a maximum velocity is reached। इसका मतलब ये है कि शुरू में क्या होगा, अगर हम लोग एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैंने सबस्ट्रेट को इंक्रीज कर दिया, तो इनिशियली तो क्या होगा, फौरन से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। सबस्ट्रेट मैंने डाल दिया तो जितना एंजाइम पड़ा था जो है खाली, वो सारा फौरन सबस्ट्रेट के साथ मिलके जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। लेकिन जब आपका एंजाइम ही खत्म हो जाएगा, मुझे बताओ जितना एंजाइम अवेलेबल था, 10 ग्राम एंजाइम था, ठीक है, तो आपने सबस्ट्रेट पहले 5 ग्राम डाला है, ठीक है, तो 5 ग्राम एंजाइम उसके साथ रिएक्ट कर गया, 5 तो खाली ही पड़ा है ना, आप सबस्ट्रेट और डाल देते हो, सबस्ट्रेट को आप 10-20 ग्राम सबस्ट्रेट और डाल देते हो, उससे क्या होगा, उससे जो आपका अवेलेबल एंजाइम जो पड़ा था वो सबसेट के साथ मिलके एकदम से रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, मैक्सिमम पे ले जाएगा। लेकिन व्हेन ऑल द एंजाइम हैज बीन फिनिश्ड, जब एंजाइम की जितनी कंसंट्रेशन थी, जितने ग्राम्स था, जब वही खत्म हो गया है, तो फिर सबसेट चाहे जितना मर्जी डालते जाओ, फिर तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन ही ना बढ़ेगा। तो इनिशियली इसका आंसर ये है कि इफ वी इंक्रीज द सबसेट कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्शन, initially the speed of reaction will be increased, initially the rate of reaction will be increased until it reaches the maximum level and then it started to be decrease, लेकिन बाद में ये स्लो होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग, अच्छा एक और चीज माइकल्स कांस्टेंट लिखा हुआ है कि ये हमने इक्वेशन पहले भी की थी कि, अच्छा जी, बड़ी बात है, बड़ी बात है, एक हमने लिपिड्स वाला चैप्टर कर चुके हैं, अब हम लिपिड्स वाला चैप्टर, आई एडवाइस यू, किसी ने कहा है कि जी मैडम ऐसे ही रिपीट करवा दें, तो देखो पहले हम अपने जो है ना जो ऑनगोइंग चैप्टर्स है ना वो कर लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि लिपिड्स का हमने कुछ ना कुछ तो कवर कर ही लिया, फिर इंशाल्लाह तुम लोग खुद पढ़ो फाइक अहमद से, नहीं जिस चीज़ की समझ आएगी, क्लासेस इंशाल्लाह होंगी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होंगी, तो जैसे होंगी तो उनमें से जो जो चीज़ें नहीं समझ आएंगी हम रिपीट कर लेंगे, कहोगे तो पूरा चैप्टर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट खुद से एक एफर्ट कर लो कि पहले खुद से तो उस चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि वो इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो खुद से सबको एडवाइस है कि ये जो बीच में हफ्ते का गैप आ जाता है हमारी क्लासेस में, तो इसमें जरा किताबें खोल के चैप्टर पढ़ लिया करो। और मैंने इसलिए तुम लोग की आसानी के लिए ये किया है कि अब मैं बुक से ही, ठीक है, बुक की ही हम
इमेजेस ले लें, और तुम्हारे पास तो बुक है, इधर छोटा भी नजर आता है तो कोई मसला नहीं है, तो ये है कि हम बुक से ही करें, ताकि वही चीज कर रहे हैं जो तुम लोगों के पास अवेलेबल है, नथिंग एक्स्ट्रा। जी, मैक्सिमम वेलोसिटी, जी मैक्सिमम वेलोसिटी ज़रा वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी है जो एंजाइम के रिएक्शन की, टू द लेवलिंग ऑफ द रिएक्शन एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिफ्लेक्ट्स द एंजाइम सैचुरेशन विद द सबस्ट्रेट। ज़ाहिर है जितना एंजाइम था वो जब सैचुरेट हो जाएगा आप सबस्ट्रेट के साथ, तो उसके बाद से हम चाहे सबस्ट्रेट इंक्रीज करते रहें, कोई फायदा नहीं होगा। माइकल्स कांस्टेंट Km, अकॉर्डिंग टू द माइकल मेंटन इक्वेशन, माइकल्स एक केमिस्ट था जिसने एंजाइम्स के लिए एक कोई इक्वेशन कोई डिराइव की थी, ठीक है। वो जो इक्वेशन डिराइव की थी वो पता नहीं तुम लोगों की किताब में लिखी है कि नहीं लिखी है, मेरे ख्याल में नहीं लिखी हुई है, ठीक है। वो इक्वेशन भी मैं तुम लोगों को बता दूंगी इसने क्या इक्वेशन डिराइव की थी, लेकिन ये इसने एक कांस्टेंट फिर दिया था Km। अब ये जी Km क्या कहता है वो हम पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द माइकल्स मेंटन इक्वेशन, the substrate concentration, it is the substrate concentration at which the reaction velocity is half maximum। Km एक कांस्टेंट है और वो ऐसा कांस्टेंट है जिसपे जो सबसेट कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यू इक्वल है हाफ टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि सबसेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। इस कांस्टेंट को माइकल मेंटन ने नाम दिया था Km माइकल्स कांस्टेंट। इट डज नॉट वेरी विद द एंजाइम कंसंट्रेशन, इसका एंजाइम की कंसंट्रेशन से कोई लिंक नहीं था। लो Km वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द हाई एफिनिटी ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अगर क्योंकि ये जो Km है देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई ना सबस्ट्रेट से, बिकॉज Km इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो इन वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शन हो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये हुआ कि जब लो Km होगी, जब Km की वैल्यू कम होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की दोस्ती अच्छी है, ठीक है। व्हेन देयर इज लो Km इसका मतलब है एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी बहुत हाई है, और जब ये हाई Km होगी तो इसका मतलब होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो रिलेशनशिप है वो वीक है, ठीक है। तो ये एक कांस्टेंट उसने दिया था कि Km की वैल्यू से हमें क्या पता चल सकता है। Km उसने कांस्टेंट दिया था कि जब ये Km कम है इसका मतलब है एंजाइम और सबस्ट्रेट अच्छे खासे बाउंड हुए हुए हैं, ठीक है, बाइंड हुए हुए हैं। और जब Km जो है वो ज्यादा है तो इसका मतलब है देयर इज द वीक एफिनिटी। ठीक है जी, ठीक है। मैं इस अदीना ने ये कहा है कि ये भी आप हमें भेज दें एंजाइम्स का PDF वाला जो है, अगर तुम लोगों के पास किताबें नहीं हैं या हॉस्टल में रह गई हैं, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को ये सेंड कर दूंगी, नो वरीज, ठीक है, आई विल सेंड यू। लेकिन ये है कि लॉकडाउन तो अभी 31 मई तक, पूरा महीना तुम लोग मई का क्या करोगे किताबों के बगैर। मेरा ख्याल है कि एक लैपटॉप या मोबाइल से पढ़ना इज नॉट एज इजी एज फ्रॉम द बुक। तो बुक स्टोर्स वैसे खुले हैं, और अगर तो कोई करीब रहता है तो अपने हॉस्टल से चाय ले जाए, कॉलेज भी तुम लोग का खुला है। लेकिन अगर नहीं ले सकता तो चलो आई विल शेयर द PDF, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी चीज़ है एंजाइम कंसंट्रेशन के, अगर आपने जो है ना जी एंजाइम की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा की तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज की है तो फिर क्या होगा, वही होगा जैसे सबसेट कंसंट्रेशन, कि एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से पहले तो फौरन से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब जितना सबस्ट्रेट था वो जब एंजाइम के साथ बॉन्ड बना लेगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर बाद में एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का क्या फायदा। अगर सबस्ट्रेट ही आपका खत्म हो गया तो एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का क्या फायदा। तो इनिशियली we will say that initially the concentration of the enzyme will increase the rate of reaction up to the maximum level, but when all the substrate will be utilized, will be attached to the enzyme, then further increasing the concentration of enzyme will have the no effect, ठीक है। तो initially if we increase the concentration of enzyme तो rate of reaction increase होगा, बाद में decrease हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद टेम्परेचर है, देखो हर एंजाइम जो है ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एक्ट करता है, ठीक है। हर एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमम स्पेशल टेम्परेचर पे एक्ट करता है, ठीक है। और वो टेम्परेचर जो है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके हम एंजाइम इससे हम ऊपर अगर ले जाएंगे तो जाहिर है एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाएगी,
ठीक है, और इससे हम बहुत नीचे भी ले जाएंगे तो फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होने लग जाएगी। तो फॉर एवरी एंजाइम वी हैव द basically for every enzyme we have the specific type of the temperature which is called as the optimum टेम्परेचर। तो हर एंजाइम के लिए बल्कि स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है, बल्कि हर तमाम एंजाइम्स जो है ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट और इफेक्टिव होते हैं, और वो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर तुम 37 से इंक्रीज कर दोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम होने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंजाइम को 50 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दूं तो एंजाइम की एक्टिविटी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ 80 डिग्री कर दूं। अब इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि 100 डिग्री पे भी इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम्स, जो तुम लोग शायद माइक्रो में भी पढ़ते हो, ठीक है। थर्मोस्टेबल एंजाइम्स ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शंस हैं, कम है। नॉर्मली जो एंजाइम्स हैं ना वो 37 पे ही उनका आइडियल टेम्परेचर होता है जिसपे वो बड़े अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक और फैक्टर है पीएच, ठीक है। पीएच का क्या इफेक्ट है जी? पीएच का ये इफेक्ट है कि एवरी एंजाइम हैज इट्स ओन स्पेसिफिक पीएच टू विच इट परफॉर्म्स द बेस्ट, ठीक है। हर एंजाइम की अपनी एक जो ऑप्टिमम पीएच है। सो इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द पीएच देन व्हाट विल हैपन? द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम विल बी lost. Yes, enzyme will be denatured at the high temperature. There is a question. हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीएक्टिव बिल्कुल हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। द थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम विल बी लॉस्ट एट द हाई टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर द फ्यू एंजाइम्स विच आर थर्मोस्टेबल विच आर हीट स्टेबल, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेप्शन है फ्यू एंजाइम्स की जो कि हीट स्टेबल एंजाइम्स हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स हैं। तो जो थर्मोस्टेबल एंजाइम्स हैं they are basically active at the very high temperature even at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एक्टिव होते हैं, बाकी ज़्यादातर एंजाइम जो हैं वो 37 पे ही एक्टिव होते हैं। अब इसी तरह से पीएच है, ठीक है। तो पीएच का भी क्या इफेक्ट है? पीएच का भी ये इफेक्ट है कि हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच है, ठीक है। जैसे कि पेप्सिन, पेप्सिन एसिडिक पीएच पे काम करता है, ट्रिप्सिन एसिडिक पीएच पे काम करता है, यानी कि 1 to 2। अगर तो 1 और 2 पीएच हम देंगे तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं 8 9 पीएच या 6 7 पीएच दे देती हूँ तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन तो डीनेचर हो जाएंगे ना। तो हर एंजाइम की अपनी एक स्पेसिफिक पीएच है जिस पे एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। इस पीएच को हम अगर इंक्रीज और डिक्रीज कर देंगे, इफ इंक्रीज और डिक्रीज द पीएच, देन क्या होगा कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक पीएच है, कोई फिक्स नहीं है, हर एंजाइम की डिफरेंट है जिस पे एंजाइम एक्ट करता है। उसके बाद है प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। अब प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये है कि जितनी जल्दी तुम लोग जो है ना रिएक्शन की जो प्रोडक्ट बनी है ना, जितनी जल्दी उसको रिमूव करते जाओगे उतना फास्ट, उतना स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। इफ वी रिमूव द प्रोडक्ट एज सून एज दे आर मेड देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड इन द स्पीडी वे, ठीक है। अगर देखो एंजाइम ईएस कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद प्रोडक्ट बन गई, प्रोडक्ट वहीं पड़ी है, तुम लोग रिमूव ही नहीं कर रहे। अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करें तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका जो है ना वो स्लो होता जाएगा कि शायद इसकी जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। तो अगर हम फौरन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको रिमूव करते जाएंगे फास्टर वे में, तो आपका जो है ना रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्टर वे में ही होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है और जो रिमूवल है दैट इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। इसके बाद मेटल एटम्स। अब देखो एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना उसको हम इनहिबिट भी कर सकते हैं और उसको मजीद एक्टिवेट भी कर सकते हैं। So there are certain metal atoms basically which affect the activity of the enzymes, ठीक है। there are many enzymes which require the metal atoms for their activity, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि जिंक की प्रेजेंस में बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। तो अगर हम जिंक को रिमूव कर दें तो वो अपनी एक्टिविटी को लूज कर देता है, ठीक है। इसी तरह से जी पायरुवेट काइनेज एंजाइम है जिसको मैग्नीशियम और पोटेशियम मेटल्स जो हैं, मैग्नीशियम और पोटेशियम जो मेटल्स हैं उनकी प्रेजेंस की फॉर्म में बहुत अच्छा ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम इनको रिमूव कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लॉस्ट कर देगा। तो देयर आर सर्टेन मेटल एटम्स विच हेल्प टू इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम।
ठीक है। जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो जिंक की प्रेजेंस में अच्छा एक्ट करेगा। इसी तरह से देर आर सर्टन अदर enzymes basically which perform well in the presence of the enzyme in the presence of the metals, and if we remove the metals तो फिर क्या होगा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी को लूज कर देगा। तो दिस इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। पहले हम जो पढ़ते थे ना वो सिर्फ यही फैक्टर्स थे, enzyme concentration, temperature, pH and the substrate concentration, but there are few other factors which also affect the activity of the एंजाइम। अब इनहिबिटर्स, इनहिबिटर के तो नाम से ही अंडरस्टूड है कि इनहिबिटर्स क्या कर रहे हैं। इनहिबिटर्स का काम है एंजाइम को इनहिबिट करना, ठीक है। तो देयर आर द सर्टेन इनहिबिटर्स विच इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जी जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स, enzyme concentration, substrate concentration, pH, temperature. So these are the factors basically which affect the activity of the enzyme. अब हम इनहिबिटर्स की बात की है तो हमारे पास जो है ना दो तरह के इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो है दैट इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और जो सेकंड वन है दैट इज द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसको हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों कहते हैं, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिटिव को इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं, कॉम्पिटिटिव को हम रिवर्सिबल इनहिबिटर कह रहे हैं, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दीज इनहिबिटर्स रिजेंबल द सबस्ट्रेट। ये जो इनहिबिटर है ना ये क्या करता है कि ये सबस्ट्रेट की शेप को अज्यूम कर लेता है। दिस इनहिबिटर टेक्स द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की शेप को अज्यूम करने का मतलब ये है कि अगर ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट बन जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर एंजाइम को जो है ना वो मिसकंसेप्शन भी हो सकता है कि ये इनहिबिटर नहीं बल्कि ये तो सबस्ट्रेट है, क्योंकि सबस्ट्रेट ने आके एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करना है। द सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर सबस्ट्रेट ने जो जी एक फ्रॉड किया है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट ने क्या किया, एक मास्क पहन लिया है विच इज आइडेंटिकल टू द शेप ऑफ द इनहिबिटर ने एक मास्क पहन लिया है विच इज आइडेंटिकल टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, देन क्या होगा, देन एंजाइम आपका बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा ना, वो तो इसको एज अ सबस्ट्रेट ही समझेगा, ठीक है। तो एंजाइम्स जी, जो एंजाइम एक दफा इनहिबिट हो गया है, देखो जो तो इरिवर्सिबल है यानी कि वो तो दोबारा अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आ सकता, लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं यानी कि जो रिवर्सिबल हैं, वो एंजाइम जो है दोबारा अपनी एक्टिव फॉर्म में आ सकता है अगर इनहिबिटर्स को रिमूव कर दिया जाए और एंजाइम्स को हम एक फेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दें। इफ यू प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशंस टू द एंजाइम देन इट कैन कम बैक टू इट्स नेटिव ओरिजिनल एक्टिव स्टेट, ठीक है। लेकिन ये होगा एक खास किस्म के इनहिबिटर्स के लिए, ठीक है, जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, अगर वो रिमूव हो जाए। लेकिन अगर जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं देखो वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। इरिवर्सिबल है तो फिर एंजाइम अपनी नेटिव स्टेट में नहीं आएगा, बल्कि एक दफा अगर वो डीएक्टिव हो गया है तो दोबारा से इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड, ठीक है जी। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब ये है कि देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर, ठीक है। तो इनहिबिटर अज्यूम द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। हमारी बॉडी में देखो इनहिबिटर्स नहीं होते, ठीक है। देयर आर नो इनहिबिटर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हम इसकी अभी एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ड्रग्स, ड्रग्स जो तुम लोग लेते हो ना वो एज एन इनहिबिटर काम करती हैं, वो एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकती हैं, ठीक है। तो वी विल गो टुवर्ड्स द एग्जांपल्स कि नेचुरली देयर आर नो इनहिबिटर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी जो हमारे नेचुरल एंजाइम्स को ही किल कर दें, ठीक है। लेकिन जो हम बाहर से आइटम्स एक्सोजीनसली लेते हैं यानी कि जो हम ड्रग्स लेते हैं डिफरेंट, और तो तुम लोग केमिकल कंपाउंड्स को ले रहे हो, नॉर्मली ड्रग्स ही होती हैं जो कि हमारे बॉडी के एंजाइम्स को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हम अभी करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ड्रग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ड्रग्स बेसिकली इनहिबिटर्स के तौर पे काम करती हैं, काम कर सकती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या है कि इनहिबिटर आपकी एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर गया है, एंजाइम ने उसको सबसेट समझ लिया है और ई एस कॉम्प्लेक्स बना दिया है। वो जो ई एस कॉम्प्लेक्स बनना था ना वो अब ई आई कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि ई फॉर एंजाइम एंड आई फॉर इनहिबिटर, ठीक है। अब ई आई जो कॉम्प्लेक्स बन गया है, अब ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इनहिबिटर जब एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे बाइंड कर गया तो उसने एंजाइम की एक्टिव साइट को ही बंद कर दिया, एक्टिव साइट को ही खत्म कर दिया ना, एक्टिविटी एंजाइम की लूज हो गई, एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर सारा डिस्टर्ब हो गया,
ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर जो है जी वो रिमूव हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर जरा दे दूं कि हमारी बॉडी में कोई भी इनहिबिटर्स नहीं है, ठीक है, ताकि हमारा जो है ये क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये होता है कि जो इनहिबिटर है वो कोई शेप वेप इख्तियार नहीं करता उसकी सबसेट की, ठीक है, यानी कि मिसगाइड नहीं करता एंजाइम को, बट क्या करता है, इट अटैचेस टू द some other site on the surface of the enzyme and it decreases the activity of the enzyme. So competitive inhibitors and non-competitive inhibitors, they both basically decrease the activity of enzyme by attaching to either the active site or some other site at the surface of enzyme. अगर तो जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट पे अटैच हो रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट की शेप ज्यूम करके, सबस्ट्रेट का मास्क पहन के, एंजाइम को धोखा देके, तो वो है कम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसमें भी क्या होगा कि एक्टिव साइट जो 3 डायमेंशनल कैविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे इनहिबिटर बाइंड किया, एंजाइम की एक्टिविटी तो खत्म हो गई, ठीक है ना। तो अब दूसरा जो है इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो भी क्या करेगा, वो सबसेट की शेप तो ज्यूम नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है कि वो किसी और साइड पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, और एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। जब एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो दोबारा रीगेन नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये जो है इनहिबिटर रिमूव हो जाए तो एंजाइम अपनी एक्टिव स्टेट में आ सकता है, जो रिवर्सिबल वाला है, ठीक है, जो इरिवर्सिबल है वो तो नहीं आ सकता। अच्छा जी, both types of inhibitors are taken by the body from outside through meals only or through other ways. खानों के साथ इनहिबिटर्स कम ही आते हैं। मैंने ये बताया है कि ड्रग्स एक्ट एज एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है, तो ड्रग्स जो हैं वो एंजाइम इनहिबिटर्स के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के इनहिबिटर्स हैं। अब इनहिबिटर का हम बिल्कुल बस कर रहे हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल तो पढ़ लेना हम, ठीक है। अब देखो, हमारी बॉडी में जो है जी एक आपकी बॉडी में जो है ना एंजाइम है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो आप एक जो है हमारी बॉडी में एंजाइम है जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो आप फिर ऐसी दवाई लेते हो जो कि उस एंजाइम को इनहिबिट कर दे। फॉर एग्जांपल, हम वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ द एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एग्जांपल ऑफ द एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन की जो एग्जांपल है दैट हैज बीन गिवन, ठीक है। तो एग्जांपल जो है जी, ड्रग्स एज द एंजाइम इनहिबिटर्स लिखा हुआ है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम converts the angiotensin 1 to angiotensin 2, the active form of angiotensin, and it is the potent vasoconstrictor, ठीक है। angiotensin 2 activates the blood pressure by vasoconstriction, और जो हमारी जो ड्रग है, ठीक है, इट ब्लॉक्स द कन्वर्जन ऑफ द एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2। अब मैं इजी वर्ड्स में तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एग्जांपल व्हिच हैज बीन गिवन, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टिंग इनटू एंजियोटेंसिन 2 अपनी एक्टिव स्टेट में, ठीक है। एंजियोटेंसिन जो है एक वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है, और इसको जो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 को 2 में, वो भी एक एंजाइम है, ठीक है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को 2 में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है। जब ये 2 में चेंज हो गया तो इसने क्या करना है, इसने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देनी है। जब आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में आप क्या करते हो, आप लेते हो ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग, ठीक है। अब जो ब्लड प्रेशर को कम करने वाली ड्रग है वो क्या करेगी, वो ये करेगी कि उस एंजाइम को ब्लॉक कर देगी, इनहिबिट कर देगी, जो कि एंजियोटेंसिन को 1 को 2 में चेंज कर रहा है। ना एंजियोटेंसिन 1 2 में चेंज होगा, ना वो वेजोकंस्ट्रिक्टर बनेगा, और ना ही तुम लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो शूट अप करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली एज ए एंजाइम इनहिबिटर्स काम करती हैं, वो पॉजिटिव वे में काम करती हैं, ठीक है ना। अगर तो वो आप ड्रग नहीं लेते हो तो आपका तो बॉडी में एंजियोटेंसिन 1 इनएक्टिव स्टेट है, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिव स्टेट है। तो एंजियोटेंसिन 2 तो फिर क्या करेगा, वो आपका वेजोकंस्ट्रिक्शन करता रहेगा, ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज ही रहेगा, ठीक है।
तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 से 2 में जो चेंज होना है, इस चेंज होने को रुकवा रही है आपकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, जो कि इस टाइम एक्ट कर रही है एज ए एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, तो जी इज इट क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट टाइम हम रेगुलेशन वगैरह एंजाइम्स की जो है ना, कितने पेजेस हैं जरा देख लूं, 2-3 पेजेस ही हैं, साथ में फिर मैं ऐसा करूंगी उनसे कहूंगी कि 2 स्लाइड्स हमारी एक्टिवेट कर दें, या हो सकता है कि नेक्स्ट वीक क्लास ही एक हो जाए या क्लास का टाइम ही थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे कि जी देख लेंगे इसको, डिपेंडिंग अपॉन अगर तो 2 आवर्स की क्लास हुई तो फिर तुम लोग को मेरे से ज्यादा जल्दी है, बोल बोल के मैं थकी हूँ और तुम लोग सुन सुन के थक गए हो। ठीक है, तो जी हम लोग जो है जी, अब हम नेक्स्ट टाइम जो है तुम लोग इसको स्टडी करो। ठीक है, और उसके बाद जो है कोई प्रॉब्लम है तो फिर कर लो। मैंने ये बताया है कि जो भी हर बीमारी की एक दवाई है ना, ठीक है ना, तो जो दवाइयाँ हैं ना वो एज ए एंजाइम इनहिबिटर एक्ट करती हैं, क्योंकि बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही है तो उसको भी किसी भी प्रोसेस को करवाने के लिए एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अगर तो एंजियोटेंसिन 1 मैंने तुम लोग को बताया है, वो एक वैसो कंस्ट्रिक्टर है हमारी बॉडी में, जो कि ब्लड प्रेशर करवाता है। ठीक है ना, ब्लड के प्रेशर को शूट करवाता है। एंजियोटेंसिन 1 इनएक्टिव फॉर्म है, वो 2 में चेंज होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब एंजियोटेंसिन 1 2 में चेंज होती है तो उसको चेंजिंग करवाने के लिए वी हैव द बेसिकली enzyme basically, which is angiotensin converting enzyme. ठीक है, angiotensin converting enzyme is basically the enzyme which is responsible for increasing your blood pressure. ठीक है, angiotensin 2 activate होगा तो क्या होगा, if the angiotensin 2 has been activated, then it is a potent vasoconstrictor, so the blood pressure will be raised. So what we do, we basically take the एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, हम ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करें। अब नो हाउ द ड्रग विल बेसिकली व्हाट इज द बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग। ड्रग क्या करेगा, ड्रग का काम ये है कि ड्रग एज अ एंजाइम इनहिबिटर काम करेगी, और क्या करेगी कि बॉडी में जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसी को इनहिबिट कर देगी। When the enzyme which converts the angiotensin 1 into 2 will no more remain active, then definitely आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंजाइम्स। आज हमने जो किया है, एंजाइम की क्लासिफिकेशन की है, एंजाइम की सब क्लासेस पढ़ी हैं, प्लस द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, वी हैव डन विद दैट, द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स एंड प्लस द एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट, टू बेसिकली रिवाइज दैट। ठीक है, कि तुम सब जो है इसको रिवाइज करो। ठीक है, सो एज यू रिवाइज, यू गो थ्रू द चैप्टर, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही हम रिवाइज करेंगे तो फिर उसके बाद we will be in the better mode to explain, we will be in the better mode to learn more. ठीक है, तो जी अब बिल्कुल हमने बस कर दिया है, मूविंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट लेक्चर, जो भी तुम लोग का नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का भी है, बट आई विल एडवाइस के इसको पढ़कर आओ और साथ में जो है ना अपना लिपिड्स का भी जो है ना वो करो। अगर नहीं करोगे तो फिर इट इज ऑलरेडी लेट एंड इट विल बी मोर लेट। ठीक है, तो जी हमने एंजाइम्स की स्पेशली आई विल फोकस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम। ठीक है, अच्छा बीएमआर का फॉर्मूला सबको मिल गया था? Have the formula of BMR has been shared with all of you guys? Formula of the BMR has been shared, क्योंकि वो लाजमी है, वो हम सब ने करना है। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ द BMR, वी ऑल आर एडवाइज टू रिमेमोराइज द फॉर्मूला। ठीक है, उस पेज को एक को संभाल के रखना है और वो हमने लाजमी करना है, फॉर्मूला ऑफ द BMR। आई एडवाइज यू टू डू दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर सबको मिल गया है तो ठीक है जी, ओके। अगर फॉर्मूला मिल गया है तो उसको लाजमी हमने इंक्लूड करना है, बिकॉज दैट वाज मिसिंग इन दैट प्रेजेंटेशन। ठीक है, आई विल आल्सो शेयर this presentation with you guys. ठीक है, if any one of you has any question, you can simply ask me, you can frankly ask me ना। अभी भी कोई questions हैं, कोई pending है तो do ask me, और जो चीजें रह जाएंगी we will do in the next lecture। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो I am available every time for you, हम उसको next time कर सकते हैं। तो जी एंजाइम्स में से कोई सवाल है तो पूछ लो, ताकि हम आज का लेक्चर ओवर करें।
और नेक्स्ट टाइम फिर हम इसको प्रोसीड करें, बट नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करने से पहले पिछला एडवाइस बार बार कह रही हूँ, दिस इज एडवाइस फॉर यू कि टू गो थ्रू दिस लेक्चर। जब तक हम इसमें से गो थ्रू नहीं करेंगे तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ मूविंग अहेड, ठीक है, फर्दर प्रोसीड करने का कोई बेनिफिट नहीं है। So from today it's over from my side. Okay, we are going to finish. ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू गर्ल्स।